Hello friends, welcome back to CCSP certified channel. Today I am uploading recording of 23rd February class. It is a domain 3 class 4. Domain 3 took 6 classes. It is 4th class recording I have uploaded, and all the images or uh, anything we refer in these videos or these uh, PPTs are only for education purpose, and we claim no copyright for this. So we covered very important topic in this class 4, that is the risk, cloud risk, and we have covered the risk associated with the cloud virtualization technologies, vendor locking, vendor lockout, NISA, Node-RED 9, comparison between them. This is very important for the exam perspective. Around 4 to 5 question comes from this class onward only. And before jump to the recording, I just covered the peace of mind promotional activities. As I informed before, also IC Square conduct this peace of mind promotional activities. The time you are watching this video might be the offer has changed, but the name will remain same as a peace of mind. The existing offer say that if you enroll by 15 March and write a exam by 31st March, you will get a complimentary exam by 31st May in case you could not able to clear in the first attempt. So it is good that it give you get a fair idea of the paper also in case you don't qualify, and you get more relaxed. If you are well prepared, you can qualify in the first attempt only. So I along with this channel, I do a classes also to conduct the batches also, and I schedule the batches according to the peace of mind offers. So next peace of mind offer will come most probably by end of May or early week of June. And to get ready for this one, you just enroll for my upcoming batch. So you can become a certified CCSC certified in 25 classes. This is starting from 7th April to 19 May, 4 days a week, and from 9 a.m. to 10:30 a.m. IST. It is for working professionals. So I will share the classroom recordings also in case they miss the class. There is a demo class planned on 5th April from 6:30 to 7. Zoom will be there in the description. In case you might be watching this video and this timeline has lapsed, you just write me at the ccsp at the gmail.com to know the latest batches going on. And I will, along with this, in these classes I will not only give the classroom teaching, but uh, test papers, PPTs, and guidance also. So it will be complete course for you, and I promise that as others has qualified, you will also be able to clear this in your first attempt only. Apart from this, I am uploading this video series, and this is the same way you can also purchase this with a nominal price. This is for who cannot attend the classes because of the work-life balance or because of uh, office hours and others issues. They can go through these recordings. In this recording also I will give the PPTs, test papers, guidance, and these recordings, and you can write me if you are interested for this. Now I jump to the topic of the day, that is the module 3 of domain 5. So we will cover the module 3 today, though we have seen yesterday that NISA 8. So we will see what are the risks associated with the cloud. And NISA has 8 has given, NISA is European organization. That agency has given the top 8 risk associated with the cloud. But that's not the only things. उससे ज़्यादा भी हैं, पर NISA ने अपने आर बताए हैं. ऐसे नोटिस 9 है. We'll compare them also. So we will go them in one by one quickly. So laws of governance, as we have seen that in cloud, we are just one who consume the services of the cloud. So we lost many of the governance capabilities, like we cannot do a port scanning, we cannot do a vulnerability assessment and penetration testing without the approval of CSPs. So we are more on the depend on the contract or the CSP for performing any task. Also, CSP may outsource or subcontract some of the services to third party, which may not be offered the same guarantee that the CSP is giving. So we lose the governance on the in the environment that we are purchasing and that we are holding.
Same way, there is isolation failure. We have seen that virtual machine concept is there, VM concept is there, and there are multiple type of attacks possible because of the multi-tenancy, side channel, VM escape that we have seen. So those are possible because of this multi-tenancy nature. We also have seen that compliance risk, that there are different legal laws are there, and customer is all only responsible. CSP is not responsible against them. So even though CSP do something wrong, uh, ultimately the customer is responsible against the how the data is being stored, how data is being used. So and sometimes CSP does not cooperative also when this is some legal requirements comes to the customer, because always the legal requirement or the legal notice comes to the customer. CSP sometimes cannot provide the evidence, or sometimes they delete the evidence. They don't allow the audit to the customers. So if the contract allow, then only CSP will be forced to give those details or forced to be legally bounded. Otherwise, CSP has no responsibility against law in the court. And we have seen the management interface is most important interface, and that is managed by CSP. If that get compromised, whole security get compromised. So these are definitely data protection and data. The customer is the data owner, and they are the responsible, and they have the responsibility to secure for data loss and data breach. And definitely CSP do support them, but they are not responsible, and there are chances that their controller face legal issues because of the CSP's mistakes. And there's insecure or there's no deletion, proper deletion is there. Always there's a possibility that something left out there, and that's why the encryption helps a lot. Though there's always insecure, if there's insufficient deletion of the data may reside there on the CSP. So now there is a Notorious 9 and ANISA 8 that we have seen the similar type of work we have seen Notorious 9, we will see in the ANISA 8, and we'll see one trick also that I have used to remember. It's not necessary कि आप लोग भी वैसे ही याद रखो, पर जिस तरह से मैंने याद रखा तो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा उसमें, तो एग्जाम में आपको टेबल बनानी पड़ेगी कि नोटिस 9 का क्या है, एनिसा 8 का क्या है। तो एक स्टोरी से इस वेरी एग्जाम में स्टोरी बड़ी आसानी से याद हो जाती है, ट्रिक से याद नहीं होती। सो स्टोरी सुनाता हूँ कि सीएसपी है, एक कस्टमर ने रिपोर्ट किया कि एक डेटा लॉस, डेटा ब्रीच हुआ है। सो सीएसपी या तो ड्यू डिलिजेंस से या गवर्नेंस की कमी के कारण ऐसा हुआ होगा। सो सीएससी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दिस, क्योंकि कंप्लायंस हुआ है ये। सीएसपी को पता चला कि एडमिन अकाउंट के थ्रू हुआ है, सो आइदर अकाउंट हाइजैक हुआ है या मैनेजमेंट प्लान कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेटर दे फाउंड कि ये मॉलिशियस इनसाइडर था। यहाँ तक का मैं कवर करता हूँ कि डेटा लॉस और डेटा ब्रीच जो नोटिस 9 में है, एनिसा 8 में भी डेटा डिलीशन है जो लॉस से रिलेटेड है, और डेटा ब्रीच से डेटा प्रोटेक्शन है। सो यदि डेटा लॉस और डेटा ब्रीच का कोई केस आया है, तो या तो ड्यू डिलिजेंस डिलीजेंस फॉलो नहीं हुआ होगा, या गवर्नेंस फॉलो नहीं हुआ होगा, एंड नाउ देयर इज अ रिस्क ऑफ कंप्लायंस। यदि आप इस टेबल को इतना बना लेते हैं, तो यहाँ 4D रखे हैं मैंने कि डेटा लॉस, डेटा ब्रीच, डिनायल ऑफ सर्विस एंड ड्यू डिलीजेंस। तो चारों डी आप लिख दोगे यहाँ तक का। देन इट माइट बी बिकॉज ऑफ द अकाउंट हाईजैकिंग और द मैनेजमेंट प्लान कंप्रोमाइजेस। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं। और मालिशियस इनसाइडर बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ने लिखा है, नोटरियस 9 और इनसाइड में। हमने बोला ना, रक्षक ही भक्षक वाला, पुलिस वाला ही गुंडा हो जाए तो वो वाला कंसेप्ट है। मॉलिशियस इनसाइडर होगा तो वो सबसे क्रिटिकल रिस्क है। तो यहाँ तक के 6 तक के इस तरह से याद हो जाएंगे यदि आप इस तरह से स्टोरी याद रखोगे। डेटा ब्रीच, डेटा लॉस हुआ है, ये ड्यू डिलिजेंस की कमी थी, गवर्नेंस की कमी थी। अब नाउ वी हैव टू फेस द कंप्लायंस रिस्क। या तो अकाउंट हाईजैक हुआ है, या फिर मैनेजमेंट प्लान कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पर बाद में पता चला कि मॉरिशियस इनसाइडर था। और वर्स्ट केस क्या हुआ कि इट वाज ऑन मल्टी टेनेंसी, तो शेयर टेक्नोलॉजी और आइसोलेशन फेलियर के कारण मल्टीपल कस्टमर इम्पैक्ट हुए हैं। एंड देन दैट जो एडमिन है उसने इनसिक्योर एपीआई यूज करके क्लाउड का अब्यूज किया है। इस तरह से आई हैव रिमेम्बर दिस, और मैंने इस तरह से जब भी लिखा ये पूरा लिख लिया मैंने। तो इसको इफ यू फॉर्म लाइक दिस, यू विल एबल टू राइट बोथ एनिसाइड एंड नोटरियस 9, और एक क्वेश्चन आपका जो आएगा उसका आंसर यू विल एबल टू गिव। Who has dropped? I think Karthik has dropped. So Arpit, is it clear to you? यस रवि। So इसको एक बार बनाना टेबल को ऐसे ही घर पे, वही जिस तरह से ट्रिक में बनाई। अब कार्तिक भी चला गया, अब 2 मिनट कहाँ गया? Is facing some issue?
चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। कार्तिक इज ज्वाइन। हेलो कार्तिक। Yeah, sorry, my internet got restarted. ओके, तो ये ट्रिक सुनी क्या जो मैंने सुनाई थी, कि वापस सुनाऊं? नहीं, बस वही मिस हो गया था। Sorry. अच्छा। मैं एक्चुअली मैंने स्टोरी बनाई थी, उससे याद रखा था। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं वैसे याद रखो, पर याद रखोगे तो स्टोरी याद रहती है एग्जाम में। तो सीएसपी को एक डेटा ब्रीच एंड डेटा लॉस का केस आया था। दोनों में डेटा ब्रीच डेटा लॉस के रिलेवेंट कीवर्ड है शुरू में। यहाँ पे डेटा डिलीशन है, डेटा प्रोटेक्शन है। डेटा लॉस डेटा डिलीशन से क्लोजर है, प्रोटेक्शन का ब्रीच से क्लोजनेस है। तो सो डेटा ब्रीच डेटा लॉस का केस था। तो दे आइडेंटिफाई कि ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं हुआ, गवर्नेंस का लॉस था, इसीलिए कंप्लायंस रिस्क आया है ये। और यहाँ 4D लिखने हैं शुरू में, तो वो दो ये तीन ये सब हो जाएगा तो डिनायल ऑफ सर्विस भी आ जाएगा। देन दे इन्वेस्टिगेट कि एडमिन अकाउंट से हुआ था, तो या तो अकाउंट हाईजेक हुआ है या फिर मैनेजमेंट प्लान कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तब उनको पता चला कि नहीं, ये तो एक मॉलिशियस इंसाइडर था, किसी इंसाइडर ने किया। और बिकॉज ऑफ द शेयर टेक्नोलॉजी और आइसोलेशन फेलियर के कारण कई सारे कस्टमर इम्पेक्टेड हुए हैं। एंड द एडमिनिस्ट्रेटर यूज इनसिक्योर एपीआई को यूज करके क्लाउड का अब्यूज किया है उसने। एंड वेंडर लॉकिंग लास्ट बचा, ये जो भी इनिशिएट में आ जाए, नहीं तो ये बोल सकते हैं कई सारे वेंडर लॉक्ड हो गए। बट दिस वे एटलीस्ट यू कैन मैक्सिमम लिख लोगे ना, तो एक दो जो बचा होगा वो याद रह जाएगा, वो लिख लोगे। और ये एक टेबल बना लोगे तो वहाँ एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसका कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ एनिसा एड में था कि उसका है कि नहीं है। वो क्वेश्चन देखेंगे एक आध, तो वहां से और पता चलेगा। बट आई होप दिस क्लियर। ऐसे कुछ याद रखना है इसको। इन टेबल को मैंने इसलिए बनाया कंपैरिजन में कि जो क्लोजेस्ट सिमिलर थे उनको सामने रखा है, और जो जो बिल्कुल अलग थे उनको अलग रखा, पर स्टोरी में फॉर्म किया है ना, तो उस तरह से बना के एक बार लिख के देखना आज घर पे। ठीक है, क्लियर कार्तिक? हाँ हाँ, ओके। ओके, सो विल गो नेक्स्ट। सो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रिस्क है, एज आई मेंशन कि एनिसा ने जो 8 दे दिए वो, या फिर नोटरियस ने जो 9 दे दिए वो वही एकमात्र रिस्क है। तो 4 ब्रोडर कैटेगरी बनाई गई रिस्क की। एक है पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल रिस्क, एक है वर्चुअलाइजेशन रिस्क, जब हम क्लाउड में बात कर रहे हैं अभी। एक क्लाउड स्पेसिफिक भी रिस्क होते हैं कुछ, एक कुछ लीगल रिस्क भी होते हैं। तो चारों रिस्क हम देखते हैं। वैसे रिस्क और थ्रेट्स में अंतर पता है कि रिस्क क्या होता है, थ्रेट्स क्या होता है? एनी आइडिया, मतलब कोई भी जनरल अभी तक? जरूरी नहीं कि क्लाउड स्पेसिफिक। रिस्क और थ्रेट्स में अंतर क्या है, अर्पित, कार्तिक? हम्म, इसको थ्रेड। वो बेसिकली थ्रेट किसी के थ्रू हो सकता है। हम्म। मतलब मतलब मुझे कोई जान से मारने की धमकी दे सकता है। और अगर मैं वेजिटेबल्स काट रहा हूँ तो मेरा हाथ कट सकता है, ये रिस्क है। और कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो थ्रेट है। हाँ, सॉर्ट ऑफ, बिल्कुल। जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अपनी कार पार्क की, पर मैं कार का डोर क्लोज करना बंद हो गया, मतलब लॉक करना कार को भूल गया हूँ मैं। दिस रिस्क। रिस्क है कि उसमें चोरी हो जाएगी, है ना? पर जरूरी नहीं चोरी हो। रिस्क है कि जरूरी नहीं कि हो ही सही। थ्रेट से है कि आसपास चोर घूम रहे हैं, तो थ्रेट से। तो यदि मेरी कार रिस्क भी है और थ्रेट्स भी है, दोनों है, तो चोरी हो जाएगी। कि बाहर चोर घूम रहे हैं, वो थ्रेट्स है। और मेरी कार को मैंने लॉक करना बंद कर दिया, वो रिस्क है। और हाई चांसेस कि थ्रेट्स और रिस्क मिल जाएंगे, और आई मे लॉस द कार। तो ये है कि थ्रेट्स होता है कि देयर इज अ चांसेस। अब पाकिस्तान हमारा नेबर है जो कि टेररिस्ट कंट्री है, तो टेररिज्म इज अ थ्रेट्स टू अस, कि वो थ्रेट्स हमको वो अटैक कर सकते हैं ना। और यदि हमने अपने सैनिक एक दिन के लिए हटा दिए बॉर्डर से, तो ये रिस्क है। तो रिस्क है कि जहाँ हमारी नेग्लिजेंसी होती है, वो रिस्क है जिसको एक्सपोज कर सकता है जो अटैकर्स या थ्रेट्स करने वाला। तो थ्रेट्स वो एक्सटर्नल एंटिटीज है जो कि थ्रेट्स प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये माइनर डिफरेंस है, आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर 6 डोमेन 6 है, वो रिस्क और थ्रेट्स पे ही है पूरा। रिस्क, लीगल रिस्क पे ही है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हम इसको 4 जो ब्रॉडर कैटेगरी दे रखी है वो देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क। तो इसके चार इसके सब डिवीजन है। कि जब पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क किस तरह होता है, एक तो था वेंडर लॉकिंग टाइप का। अपन ने सोचा कि अपन ने पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से साइन नहीं किया कि वी आर नॉट एबल टू मूव द क्विकली फ्रॉम अदर वेंडर, सो देयर इज अ वेंडर लॉकिंग सिचुएशंस देयर। एक वेंडर लॉकआउट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे एग्जाम में वेंडर लॉकआउट भी आया था। वेंडर लॉकआउट क्या होता है कि जैसे आपने सीएसपी लिया एक,
पर वो बहुत कमजोर सीएसपी था, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी नहीं थी, और वो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अपनी सर्विसेज ली, और वो बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो गया, करप्ट हो गया, या फिर बैंकक्रप्ट हो गए, तो यू दे विल नॉट एबल टू रन द बिजनेस। अब वो तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं ना, तो देन यू हैव टू मूव ऑल योर बिजनेस, ऑल योर इंफ्रास्ट्रक्चर क्विकली टू न्यू बिजनेस। तो आपको एक तो नया बिजनेस, नया वेंडर्स इजीली मिलेगा नहीं, उसको मिलेगा तो इतना इजीली आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे। सो यदि आपका वेंडर या फिर आपका पार्टनर जिससे आप एसोसिएटेड है वही लॉकआउट हो जाता है, तो दिस आल्सो ए रिस्क टू यू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो तुम्हारा अकेला का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इवन दो यू हैव मेड ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, बट द वेंडर वाज नॉट पावरफुल इनफ टू रन द बिजनेस, दिस आल्सो ए रिस्क टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वेंडर लॉक इन, वेंडर लॉकआउट सिंपल है, याद रखना पड़े। इसमें सिनारियो दे रखा है कि एग्जाम में आता है इसकी व्हाट आर टाइप ऑफ रिस्क, इसमें वेंडर लॉकिंग, वेंडर लॉकआउट भी एक ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। Loss of governance, as we have seen that we lost the governance, we cannot perform the audit, we cannot perform the penetration testing or the vulnerability assessment of our systems. There's a loss of governance there, and the compliance that we have seen that all the legal entity we are responsible, but our CSP has no responsibilities against the legal, and they might not follow the compliance requirement that we have. Virtualization associated risk. वर्चुअलाइजेशन हमने चार कैटेगरी देखी थी, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, वर्चुअलाइजेशन सेकंड वन। सो हमने देखा गेस्ट अभिषेक इज आल्सो जॉइंड। हेलो अभिषेक, हाँ। थोड़ा हेलो। छूट गया और तुम्हारा मैं गलत वो देखना अरे ठीक रिकॉर्डिंग। है, हाँ वो मैं रिकॉर्डिंग। देख लूंगा। एक्चुअली वो मीटिंग में था, मैं निकलूँ सर, तो वो शायद तुम्हें 9 बजे ही मीटिंग रखता है। अरे चलो, मैं थोड़ा सा लास्ट इतना सा हाँ रिकेप करता हूँ बस, बाकी ये देख लेना, ये मैंने एक ट्रिक बताई थी वो देख लेना, हाँ हाँ, कैसे याद करना है। ठीक है। बाकी ये अपार्ट फ्रॉम एनिसा कई और तरीके के रिस्क भी होते हैं क्लाउड में। तो चार तरह के रिस्क हैं, एक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल रिस्क है, एक वर्चुअलाइजेशन लेवल रिस्क है, कुछ क्लाउड स्पेसिफिक रिस्क है, और कुछ लीगल रिस्क है। तो हमने देखा कि पॉलिसी और पॉलिसी रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड में वेंडर लॉकिंग है, वेंडर लॉकआउट है, लॉस ऑफ गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, ये तो एनिसा में थे। लॉस ऑफ गवर्नेंस कंप्लायंस, वेंडर लॉकिंग तो हमने ऑलरेडी देखा। वेंडर लॉकआउट ये होता है कि हम जिस सीएसपी के साथ एसोसिएट होते हैं, इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन द बिजनेस, यदि वो मार्केट से बाहर हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो वी मे लॉस ऑल आवर बिजनेस आल्सो। हमको क्विकली दूसरे वेंडर पे मूव करना पड़ेगा बिकॉज आवर वेंडर्स और पार्टनर्स वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इसको वेंडर लॉकआउट कहते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन में था कि वर्चुअलाइजेशन से एसोसिएटेड रिस्क, वर्चुअलाइजेशन से एसोसिएटेड रिस्क है कि हमने देखा कि गेस्ट और वीएम एस्केप होता है, जिसमें कोई एक वीएम हाइपरवाइजर पे जाके और सभी रिसोर्सेज कंट्रोल कर लेता है, पर उसमें अदर कस्टमर को इम्पेक्ट नहीं करता। वीएम एस्केप में हमने बताया था इट विल नॉट इम्पेक्ट द अदर कस्टमर्स डेटा, दो उनकी परफॉर्मेंस कम कर सकता है, उनको अलोकेटेड सीपीयू मेमोरीज इम्पेक्ट कर सकता है, बट स्टिल दिस इज नॉट ए रिस्क एसोसिएटेड विद अदर कस्टमर्स डेटा। बट जो साइड चैनल अटैक होता है वो बहुत सबसे सीवियर अटैक होता है, जिसमें अदर कस्टमर्स का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। इसे सेम लाइक द मेरे पास एक मेरा नेबर जो है, यदि वो अ, सही नहीं है, मेरे फ्लैट के पास वाला नेबर सही मेरा सही नहीं है, तो वो कभी बालकनी से मैं घर में आ सकता है, मेरी चीजें चुरा सकता है मेरी एब्सेंस में, जब मैं मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ कैमरे से सर्विलेंस कर सकता है मेरा डेटा। सो ऐसा ही वर्चुअली भी कर सकते हैं। जब आपके पास वीएम के पास दूसरा वीएम है, तो वीएम टूल्स आते हैं जिससे आप पास वाले वीएम का डेटा चोरी कर सकते हैं। तो साइड चैनल अटैक वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सीवियर अटैक यही है, और डेटा लॉस का हाई चांसेस है कि हम साइड चैनल में दूसरे कस्टमर का डेटा चुरा लें। तो ये वर्चुअलाइजेशन रिस्क है। बाकी स्नैपशॉट और इमेज सिक्योरिटी स्प्रॉल, मेरे इस एग्जाम में स्प्रॉल आया था, पढ़ता हूँ क्या होता है वो। पर हम क्या है कि इमेज और स्नैपशॉट बड़ा इजीली ले सकते हैं क्लाउड में, जितने भी रनिंग इंस्टेंस होता है किसी भी टाइम पे उसका बैकअप ले सकते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी बड़ा रिस्क है क्लाउड में, जो हम पढ़ेंगे अभी। और एक स्प्रॉल हम देखते हैं क्या है वो। तो स्नैपशॉट पहले देखते हैं, snapshot and image security. The portability of image and snapshots makes people forget that image. हम बड़े इजीली वहाँ स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, और ये हाई चांसेस है कोई इमेजेस we forgot easily, and the snapshot can contain sensitive information and need protections. तो जो जो स्नैपशॉट्स हमने लिए हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, तो वो भी एक वर्चुअलाइजेशन एसोसिएटेड रिस्क है। एंड स्प्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
Virtualization sprawl is a phenomena that occurs when a number of virtual machines on a network reaches a point where the administrator can no longer manage them effectively. Definition अच्छे से देखो। स्प्रॉल एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ओवर द टाइम इतने वीएम्स बन जाते हैं जाके एडमिनिस्ट्रेटर उनको मैनेज नहीं कर सकता। और ये क्यों होता है? जैसे बड़ा इजी है वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में वीएम मशीन बनाना, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होता। कई कुछ लोग टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं, और ओवर द टाइम दे स्टार्ट फॉरगेटिंग देम कि उनको डिलीट करना है। वो अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग रीजन्स में वीएम्स अकुमुलेट होते जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग में इतनी वीएम की रिक्वायरमेंट थी, ओवर द टाइम ये इतने वीएम हो गए ना। तो ये एक तो अटैक सरफेस बना, बिलिंग बड़ी, और साथ में क्या है, इसको इसी कंसेप्ट को वीएम स्प्रॉल बोलते हैं कि जब ये ईज ऑफ यूज के कारण हो रहा है और मैनेजमेंट मिस यूज हो रहा है कि हम मैनेज प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवर द टाइम दिस हाई चांसेस ऑफ वीएम स्क्रॉल, हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट होता है ये। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि वीएम स्क्रॉल क्या है, ये क्यों होता है। और एक एक थ्योरी पढ़ी होगी शायद कभी तुमने, एनर्जी पैराडॉक्स सुना है कभी? एनर्जी पैराडॉक्स एक कीवर्ड सुना है क्या किसी ने? अभिषेक, कार्तिक? कौन सा कीवर्ड? एनर्जी पैराडॉक्स नहीं। क्या हुआ था जब शुरू में ये बल्ब्स की बने थे, एडिसन ने जब बनाए थे, तब बहुत ज्यादा ये वोल्ट खाते थे, बहुत ज्यादा एनर्जी खाते थे। ओवर द टाइम जब इन्वेंशन हुए तो हमने CFL और ये सब लेके आए एलईडीज। तो हमने सोचा कि ओवर द टाइम ये बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म है, और हम बहुत कंट्रोल कर पाएंगे एनर्जी कंजम्पशन को। पर हुआ नहीं कभी भी। जितना एनर्जी कंजम्पशन पहले होता था उतना ही होता रहा। और इसका ये रीजन था कि ओवर द टाइम हम जब इवन टेक्नोलॉजी चीपर होती गई, हम उसका मिसयूज करने लगे, उसको ओवर यूज करने लगे। जो पहले बल्ब 1 घंटे चलता था और रात भर चल रहा है। तो ये क्या होता है, इसको एनर्जी पैराडॉक्स कहते हैं कि कभी भी जितना ईज होता है, जितना टेक्नोलॉजी इसको इम्प्रूव करती है, जरूरी नहीं कि उतने फैक्टर्स में उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए। तो जितना हमने क्लाउड में इस यूज दे रखा है, ईज ऑफ यूज दे रखा है, वहां पे ओवर द टाइम उसका मिसयूज ज्यादा होता है। तो ये वन ऑफ द एकदम एग्जाम्पल। तो पूछते हैं वीएम स्क्रॉल क्या है, या फिर ये किसके कारण होता है? ये ईज ऑफ यूज के कारण होता है, मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट की ओवरसाइटनेस की कमी के कारण होता है। क्योंकि ये ओवर द टाइम ऐसे वीएम हो जाते हैं जो अटैकिंग सरफेस भी बढ़ जाते हैं और कॉस्ट भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेरे एग्जाम में था। मैं एक आध एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके। सो फार सो गुड। एक अब थर्ड कैटेगरी थी क्लाउड स्पेसिफिक रिस्क। हमने क्लाउड स्पेसिफिक देखा कि हाँ एक मैनेजमेंट प्लान होता है, एंड दिस मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके ब्रीच ऑफ द मैनेजमेंट प्लान है, देखा जाए कभी। और एक है मॉलिशियस इंसाइडर। ये दो चीज याद रखनी है, क्योंकि एनिसा 8 और नोटरियस 9 में दोनों में मॉलिशियस इंसाइडर बोला है। और सीएसपी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट प्लान क्या है, उसकी ब्रीच सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। देयर इज अ चांसेस कि रिसोर्स कभी न कभी एक्सेस हो जाएंगे। तभी हमने वहाँ लिमिट, शेयर और रिजर्वेशन देखा था। आइसोलेशन हमने देखा कि कभी परफेक्ट आइसोलेशन नहीं है, हमेशा आइसोलेशन फेलियर के चांसेस हैं। हमने साइड चैनल अटैक्स और सब देखे कि आइसोलेशन फेलियर के पॉसिबिलिटीज है। एंड इनसिक्योर और इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन, डेटा कभी भी वहां सिक्योरली डिलीट नहीं होता। दे आर चांसेस कि डेटा हमेशा रह जाए। इंक्रिप्शन दो हेल्प टू सम एक्सटेंट टू रिड्यूस दिस रिस्क। ठीक है। एंड लास्ट के लीगल रिस्क, हमने देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट, यदि हमने ई डिस्कवरी देखा था, हमने देखा था कि यदि किसी मान लो किसी कस्टमर का डेटा, कस्टमर ने कुछ लीगली फ्रॉड किया है, तो हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पूरी हार्ड डिस्क ब्रीच वो कर दे, सील कर दे। इन केस वो किसी और कस्टमर का डेटा इम्पेक्ट होना चाहिए था, हमारा भी हो गया, क्योंकि हम सेम मल्टी टेनेंसी में, सेम हार्डवेयर में शेयरिंग कर रहे हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट भी एक रिस्क है कि इवन दो यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्टिल योर बिजनेस कैन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टी टेनेंसी सिस्टम्स। वही ये पड़ोसी आपका जेल जा रहा है तो आपसे पूछताछ होगी, आपको भी 10 बार पुलिस में बुलाया जाएगा। jurisdiction we have seen that हमेशा even the CSP doing something mistake, we are the legally responsible, and definitely data protection हमने देख ही लिया। सो कुछ काउंटर मेजर स्ट्रेटेजीज दी हुई है क्लाउड में रिस्क रिड्यूस करें। कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है क्या अभिषेक या कार्तिक? एज ऑफ नाउ ये तो ठीक है, मतलब दिस इज फॉर मोस्टली थियोरेटिकल थिंग्स। हाँ थ्योरेटिकल, बस यार कीवर्ड्स अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसमें दिमाग लगाना, तब यही सब चीजें पूछी जाएगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं सी दैट। बस ये लास्ट कंसेप्ट है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। सो काउंटर मेजर स्ट्रेटेजीज अक्रॉस द क्लाउड। तो हमने कुछ ये यहाँ से मेरा एक डिजाइन प्रिंसिपल से क्वेश्चन था कि हम इनको रिस्क कैसे, ऑब्वियस रिस्क कभी भी जीरो नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना।
हम जब रिस्क पढ़ेंगे आगे, रिस्क कैन नॉट बी जीरो, रिस्क हमेशा उस लेवल पे आता है, उस एक्सेप्टेबल लेवल पे आता है जहाँ पे इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट कर सके। कभी भी हर कोई भी आप काम करोगे उसमें रिस्क फ्री कभी नहीं हो सकता, पर रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाता है। तो कुछ स्ट्रेटेजी से उससे आपको रिस्क एक एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकते हो। एक तो कुछ डिजाइन प्रिंसिपल से उससे ला सकते हो, कुछ कंटिन्यूस अप टाइम है उससे आप रिस्क रिड्यूस कर सकते हो, ऑटोमेशन से रिस्क कर सकते हो, और एक्सेस कंट्रोल से कर सकते हो। तो विल सी देम फोर। डिजाइन प्रिंसिपल का जो है ये डिफेंस एंड डेप्थ। डिफेंस एंड डेप्थ हमने पहले भी पढ़ा है। डिफेंस एंड डेप्थ है कि जब भी आप डिजाइन करो, अब मुझे वो भूल गया, मैं वो याद दिलाना, गूगल का वो आई विल शेयर, कि सिक्स लेवल उनका डिफेंस एंड डेप्थ है उनका डेटा सेंटर का, तो वो तुम देखना। तो जब भी आप डेटा की सिक्योरिटी या फिर अपनी क्लाउड की सिक्योरिटी देखते हो तो आप मल्टीपल लेवल ऑफ डिफेंस देखते हो। और सेम एग्जांपल है कि यदि आपको कुछ वेल्यूबल आइटम अपने फ्लेट में रखना है, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेट में रख देने से सेफ हो जाएगा। उसको सेफ्टी के लिए आप कई लेवल पे है कि आप सबसे पहले बिल्डिंग के बाहर से सेफ्टी स्टार्ट करोगे, वहां गार्ड रखोगे, इसके बाद फ्लेट में लॉक लगाओगे, डोर पे कैमरे लगाओगे, फिर उसको किसी लॉकर में रखोगे। लॉकर में भी एक फिंगरप्रिंट बेस्ड या कुछ पासवर्ड बेस्ड वो रखोगे लॉकर, उसके अंदर आप उसको रखोगे। तो मल्टीपल लेवल ऑफ डिफेंस ही होगा तो ही डिफेंस। और हमने मॉलिशियस इंसाइडर देखा। मॉलिशियस इंसाइडर से ये डिसएडवांटेज है कि वो सभी डिफेंस को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो ट्रस्टेड पर्सन है। उसको गार्ड भी नहीं रोकेगा गेट पे, उसका की भी है, क्योंकि वो सीएसपी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कमरे में भी आ सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है क्लाउड पे। बाकी डिफेंस एंड डेप्थ टेक्नोलॉजी से हम इस मैकेनिज्म के थ्रू वी कैन रिड्यूस द रिस्क। ये मेरे था कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क, इससे डिफेंस एंड डेप्थ ये आएगा, ऑप्शन आएगा ना, तो इसको ही सेलेक्ट करना है। यदि आप डिफेंस एंड डेप्थ इंप्लीमेंट करते हो, मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो, तो आप हाई चांसेस है कि आप, और जब हम इस क्लाउड के समय कि आप फायरवॉल्स करो, आप पेचिंग डेटा हार्डनिंग करो सिस्टम्स की, आप ओएस के रेगुलर अपडेट करो, आप फेडरेशन यूज करो, ये सब आप यूज करोगे तो आप मल्टीपल लेवल ऑफ डिफेंस इंप्लीमेंट कर रहे हो, हाई चांसेस है कि आप टीएलएस यूज कर रहे हो, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। कंटिन्यूस ऑफ टाइम हमने देखा कि जो रेजिलियंसी होनी चाहिए सिस्टम में, और सिस्टम में हर हर कंपोनेंट का एक रिडंडेंट कंपोनेंट होना चाहिए, ताकि यदि वो एक डाउन हो तो दूसरा उसको क्विकली सर्व कर सके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर ना हो, कंपोनेंट फेलियर होने के बाद भी बिजनेस इंपैक्ट नहीं हो। तो कंटिन्यूस ऑफ टाइम ये कहता है कि हर एक कंपोनेंट्स का एक रिडंडेंट कंपोनेंट होना चाहिए, वो एक रिड्यूस कर सकता है रिस्क को आपके बिजनेस इंपैक्ट होने से, है ना। दिस वेरी कॉमन, कोई ऐसा है नहीं। ऑटोमेशन ऑफ कंट्रोल्स रादर देन डूइंग मैनुअल एक्टिविटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ऑटोमेट हो चीजें। जैसे हमने देखा मैनेजमेंट प्लान वन ऑफ द ऑटोमेशन, दो उसकी सिक्योरिटी भी करनी पड़ेगी, पर ऑटोमेशन हेल्प्स इन द मेनी थिंग्स, बिकॉज मैनुअली हाई चांसेस की मिस्टेक्स हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हो, तो ऑटोमेशन हो। इवन वीएम इमेजेस का जो बनाते हैं ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कोड पढ़ेंगे हम, आईएसी, वीएम इमेजेस बनाना, उस पे अपने जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, तो ऑटोमेटिकली जब आप मिशन स्पिन अप करते हो उसके साथ हो सकता है। यू कैन डेवलप ए कोड और लॉजिक, अलग अलग वेंडर्स ने अलग अलग सीएसपी ने अपना अपना अलग दिए हैं। जैसे ओरेकल में टेराफॉर्म के थ्रू जब आप कोई भी मशीन बनाओगे, वीएम मशीन के साथ आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी आप उसके साथ मशीन के साथ ही इंस्टॉल के साथ ही हो जाएगा। तो आप वो इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आप जब वीएम बने तो आप डिसाइड कर सकते हो उसमें क्या मॉलवेयर डिटेक्शन टूल होना चाहिए, क्या इंक्रिप्शन डेटा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लॉग फाइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। सभी बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो कि मेरी वीएम के साथ। और बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था कि वीएम का बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटी में हम हैशिंग के थ्रू करते हैं। बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन की अगली जब मशीन बनेगी तो वो इसी की इसी मशीन बनेगी, उसमें सब कुछ वो होगा जो कि हमको चाहिए, हमारे जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से वीएम में जो भी मशीन के सब में जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, वो सब बाय डिफॉल्ट जब मेरी नई मशीन बनेगी उसमें सब कुछ होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड होता है जो हम पढ़ेंगे, पर ये ऑटोमेशन ऑफ द कंट्रोल्स से अचीव हो सकता है। लास्ट में एक्सेस कंट्रोल है, कई तरह के एक्सेस कंट्रोल, बिल्डिंग का एक्सेस कंट्रोल है, एपीआई का एक्सेस कंट्रोल है, हमने फिजिकल सर्वर का, रेक का, हर फ्लोर का। तो हम जब एक मॉड्यूल 5 पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा हार्डवेयर का एक्सेस कंट्रोल देखेंगे, हार्डवेयर का एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है, वहाँ केवीएम पढ़ेंगे, वहाँ डेटा सेंटर में सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी कैसे होती है, तो वो सब देखेंगे। दो ये वेरी कॉमन है, पर जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर देने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है यदि आप इन चीजों को अच्छे से समझते नहीं है, कि आपको
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, डिफेंस एंड डेप्थ। जब भी हमको लगाना है कि डिफेंस एंड डेप्थ यदि आप इंप्लीमेंट करोगे तो बेस्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन है रिस्क रिड्यूस करने का। बाकी आप एक्सेस कंट्रोल करो, आप कंटिन्यूस अप टाइम करो, ऑटोमेशन करो, वो भी अदर मैकेनिज्म से, ठीक है। सो फार सो गुड, क्योंकि ये डोमेन हम मॉड्यूल 3 खत्म हो गया है, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब कोई डाउट है अभी तक? नहीं रवि। ठीक है, तो विल स्टार्ट फर्स्ट विद अर्पित। अर्पित, दिस इज टू यू। Which of the following is not top secret? इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने एनिसा और वो याद रखने के लिए बोला है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से होगा जो तुमको आंसर देना पड़ेगा, वहां कंफ्यूज मत होना, इसलिए वो ट्रिक से याद करना। Fetching failure. पेचिंग फेलियर कभी हमने पढ़ा ही नहीं, दोनों में नहीं पढ़ा है ना। पर ऐसे सिंपल एक क्वेश्चन आएगा एनिसा 8 और नोटरियस 9 का, जिसमें कुछ ऑप्शन एनिसा 8 के होंगे, कुछ नोटरियस 9 के भी हो सकते हैं ना, तो वो ध्यान रख लेना। और कुछ बिल्कुल रैंडम हो सकते हैं, जैसे ये है, तो वो तो 100% दिख जाएंगे आपको, ठीक है। दिस टू यू अभिषेक। Okay, all of the following are techniques to enhance the portability of cloud data in order to minimize the potential of vendor lock-in और 2 बार and एक्सेप्ट लिखा गया, ठीक है, एक एक्सेप्ट, कोई से भी except एक्सेप्ट ले लो। data formats use DRM and DLF solution while with other versions there is no physical limit to moving. CMCU there are no physical limitation to moving. क्लाउड में कर ही एक्सेप्ट नहीं लिखा है ना, सकते। एक्सेप्ट, ये तो ऑब्वियस, ये तो I guess D होगा। इंश्योर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स टू सपोर्ट पोर्टेबिलिटी, पर वो तो नहीं नहीं, फेवरेबल B होना चाहिए। B DRM DLP ये सॉरी। होना चाहिए। देखो, हमने देखा डीएलपी कि वेंडर लॉकिंग को डेटा या लॉक तो हमको प्रोप्राइटरी डेटा फॉर्मेट में नहीं हो, या फिर कोई फिजिकल लिमिट नहीं हो डेटा माइग्रेशन की, फेवरेबल कॉन्टेक्ट हो, ये तीनों वेंडर। पर जो डीआरएम डीएलपी इंप्लीमेंट करते हैं ना हम ना, तो वो है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन हो गया, इंक्रीज डिपेंडेंसी हो गई उसके कस्टमर की क्लाउड पे, तब आप वेंडर लॉकिंग अवॉइड नहीं कर सकते। तब आपको पूरा सॉल्यूशन नए कस्टमर के इंप्लीमेंट करना बहुत इतना इजी नहीं होगा। इसीलिए ये 3 ऑप्शन जो हमने पहले देखे, उसके अलावा जो भी आएगा वो डेफिनेटली वेंडर लॉकिंग को सपोर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन भी वेंडर लॉकिंग को सपोर्ट करता है, याद ना। यदि आपने किसी के यहाँ स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन किया, कस्टमाइजेशन कर रखा है, जैसे हमने देखा अभिषेक, कि यदि हम बहुत ज्यादा कस्टमाइज करते हैं तो कस्टमर वेंडर को निकालना बहुत इजी नहीं होता। हम अपने देखते तो ये चीजें वेंडर से इजीली निकल सकते हैं यदि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यूज किया हो, डीआरएम डीएलपी यूज किया हुआ हो, या फिर कस्टमाइजेशन किए हो, तो वो आप इजी नहीं है वेंडर लॉकिंग छोड़ना, ठीक है। दिस टू यू कार्तिक। मालवेयर। मालवेयर ऑब्वियस, बाकी सब तो आप उसका मालवेयर जबरदस्ती नहीं कि वो डालेंगे, तो पोरली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको, ठीक है, मालवेयर के अलावा बाकी सब दे सकता है। दिस टू यू अर्पित। According to the European, a cloud resource should try to mean all these occurrence tasks except B. सही है, सॉरी क्या था, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन में पढ़ा ही नहीं है, क्लाउड रिस्क असेसमेंट शुड प्रोवाइड मीन टू कस्टमर टू अकम्प्लिश ऑल दिस। एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, अच्छा। तो एनिसा आपको, एनिसा की गाइड से आपको क्या क्या, मतलब आप रिस्क एसोसिएट कर रहे हो तो आपको क्या फायदा मिल सकता है। पहले एक्सेस रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाउड माइग्रेशन, ठीक है। कंपेयर ऑफरिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, रिड्यूस द एश्योरेंस ऑफ बर्डन, ठीक है। मैं इसका आंसर देखो, यहाँ मेरे हिसाब से वैसा आंसर सी दिया हुआ था, और ये उसी गाइड से दिया हुआ आपने, रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, प्रोवाइड मींस कंप्लीट ऑल दिस एश्योरेंस। बट ये कंपेयर, मतलब आई थॉट कंपेयर करने के काम में की जरूरत ही नहीं है, तो हाँ बेसिकली हाँ, कंप्लाई। एक्चुअली एनिसा से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा क्लाउड, कौन सा रिस्क, किसी क्लाउड में कौन सा रिस्क है, किसी वेंडर्स में क्या क्या रिस्क रिस्क एसोसिएटेड हो रहे हैं, उनमें से कौन सा हमको है, इससे कंपैरिजन कर सकते हो। यही है कि हमको रेगुलेटरी, आप नॉन कंप्लायंस हो, ये रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस आपकी तरफ से, यदि आप वो रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस हो तो आपको रिड्यूस रिस्क नहीं कर सकता। ये शायद मैं अभी दिखाता हूँ उसको, उसमें बुक में ही है उससे, तो यही आंसर है, गॉट इट। कि आप उस एनिसा 8 को यूज करके आप कंपैरिजन कर सकते हो कि डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स क्या क्या रिस्क है उनमें, इनमें माइग्रेशन में करने में क्या रिस्क रहेगा, बर्डन क्या रहेगा। पर आप रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस आपकी तरफ से है तो वो रिड्यूस नहीं कर सकता एनिसा,
ये जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। आई विल शो दैट आंसर, मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा बुक में। विल गो ओके नेक्स्ट केस ऑफ नाउ। सो वो था, वो आंसर किसने दिया था? अर्पित, यू हैव गिवन दैट आंसर, करेक्ट? So this to you, Abhishek. Newly appointed CIO of a large retailer is considered migrating workload to a medium-sized cloud service provider. The CIO has concerns about the provider since they only recently started offering cloud service. Okay, they don't have established presence in the market. Would not help to reduce risk of vendor. डी होगा क्या? ये वेंडर लॉकिंग का केस है ना। हमको ओपन सॉफ्टवेयर, सोर्स सॉफ्टवेयर यूज किया है, स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट किया है, की एस्क्रो से की बाहर है तो हम डेटा डिलीट कर सकते हैं इजीली, जो सी उस जो वेंडर के पास है। और हमने कर्बरोज वैसे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, जो भी सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन यूज किया है, मैंने बताया जो भी ऐसे मैकेनिज्म यूज की है जो कि वेंडर्स के साथ एसोसिएटेड, हमको स्ट्रांगली एसोसिएट करती है, वो हमको वेंडर लॉकिंग बाहर निकालने में बहुत दिक्कत है। अगली ऑर्गेनाइजेशन हमको जाने से पहले वो देखना पड़ेगा कि वो वेंडर लॉकिंग सपोर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा हम लोग को। This to you, Karthik. अच्छा, पढ़े हमने ये इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, वेंडर लॉकिंग कहाँ पे अटैक फिट करता है नेगेटिव। पोर्टेबिलिटी कौन सा आंसर है कार्तिक? बी। बी हम करेक्ट। पोर्टेबिलिटी हम लॉस कर देते वेंडर लॉकिंग से। दिस टू यू अर्पित। which concepts involve applying standardized configuration settings standard configuration setting to this to ensure baseline हमने देखा कि बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने बोला है कि इवन एक वीएम बनाते हैं तो हम एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेते हैं। सभी वीएम हमारी उसी पॉलिसी, हमारी जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बनेगी। सो बेसलाइन हेल्प दिस टू सेटिंग द, सो ये भी एक क्वेश्चन मुझे आया था, एग्जैक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चन था पेपर में। दिस टू यू अभिषेक। Which of the following threat types is the most difficult for an organization to define? Malicious insider. हाँ, हमेशा सबसे, सभी क्लाउड में सबसे, यदि ऑप्शन हो कहीं पे मेलिशियस इनसाइडर तो वो आंसर देना है, ऐसे स्ट्रेटेजी देना है तो डिफेंस इन डेप्थ देना है। इवन तो मेलिशियस इनसाइडर होगा, डिफेंस इन डेप्थ को बहुत होगा तो बहुत इतना इजी नहीं होगा उसके लिए हर लेयर को ब्रेक करना। दिस टू यू कार्तिक। insufficient due diligence option. हमने देखा था कि ड्यू डिलिजेंस और ड्यू केयर देखा था। सो हमने देखा कि आप ड्यू डिलिजेंस ही नहीं रख रहे हैं तो ओवर द टाइम यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर डेटा, और वो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन है, कंटिन्यूस केयर है ना। सो यदि कंपनी सफिशिएंट कंट्रोल मेंटेन नहीं कर रही है तो जैसे इनसफिशिएंट ड्यू डिलिजेंस नोटिस 9 में जो था वो वाला केस है, तो ऐसे ऐसे भी आते हैं। जैसे मैंने बोला कि यही नहीं कि नोटिस 9 लिखा रहे, पर वो यूज केस बता सकते हैं कि कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है, कौन सा केस है। तो एक क्वेश्चन जरूर नोटिस 9 और एनी साइड पे आते हैं, और एक से दो भी आ सकते हैं इस हमेशा, पर एक तो 100% आएगा उन दोनों में से।
तो वो याद रखना उसको। दिस टू यू अर्पित। वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने देखा था हार्ड डिस्क जैसा होता है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज देखा था जब पढ़ा था, वॉल्यूम स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज पढ़ा था। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर तो हम डेटाबेस में पढ़ा था, वो पास वाले थे। जब हमने देखा था आस में वॉल्यूम स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, हमने देखा था ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी टू स्टोर द ऑब्जेक्ट्स। और जो वर्चुअल मशीन से और या लॉग से या बैकअप से, वो सभी ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जाता है। तो वॉल्यूम स्टोरेज वैसा ही है जैसे हार्ड डिस्क है जो लैपटॉप में लगी हुई है, इसलिए उसमें तो उतना ही फिक्स साइज होता है। और उसका पर्पस क्या होता है कि वो सिस्टम को रन कर सके। तो अपने हार्ड डिस्क में आप बैकअप नहीं रखते हो, बैकअप कहीं और रखते हो ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हो या यूएसबी वाली हार्ड डिस्क लेते हो, उसमें कुछ बैकअप रखते हो, वही वो जो स्टोरेज है। तो कंसेप्ट वही है, समझ जाओ। जैसे लैपटॉप में हार्ड डिस्क रखी हुई है वो वॉल्यूम स्टोरेज है, इसमें आपको बूट वॉल्यूम भी है, ब्लॉक वॉल्यूम भी है। और जब आप एक्सटर्नल यूएसबी के थ्रू कोई परचेस करके आते हो, 500 GB की 500 TB की हार्ड डिस्क, 100 TB, 1000 TB की हार्ड डिस्क, जहाँ आपने फोटो बैकअप, डेटा का बैकअप, वो सब ऑब्जेक्ट स्टोरेज वाला कंसेप्ट है क्लाउड में। क्लियर? यस। दिस टू यू। अभिषेक, अटेम्प्ट कर रहे हो? और सॉरी, मैं अर्पित सुना। हो सके। मैं अभिषेक एक्चुअली वो था नेटवर्क का, मेरा थोड़ा लास्ट में ये आया है। ठीक है, अब इसको पढ़ो। हाँ। A thin layer of software that provides virtual partitioning capabilities which runs directly on hardware underneath higher level virtualization service is known as an कौन सी चीज हार्डवेयर में डायरेक्टली रन करती है और वर्चुअल पार्टीशनिंग देती है? hypervisor। हाँ, हाइपरवाइजर करता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर सीधा हार्डवेयर पे चलता है, वर्चुअल पार्टीशनिंग करता है। बाकी वर्चुअल मशीन भी एक ऑप्शन था, पर वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे नहीं चलती है, वो हाइपरवाइजर पे चलती है। वो Yes, correct। आपने तो ऑप्शन है हाइपरवाइजर। दिस टू यू कार्तिक। और ये बहुत इस तरह के कई सारे सवाल भी होते हैं, तो मैंने जितने इम्पोर्टेंट से निकाले एक बार देखो। इसमें ये बहुत मतलब ऐसा है कि इसका आंसर सोच के देना पड़ेगा। तीनों अटेम्प्ट करो कि वेंडर लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए कौन हेल्प कर सकता है। मेरे लिए डी ऑप्शन सही लग रहा है। और बाकी ऑप्शन अर्पित एंड कार्तिक, अभिषेक क्या ऑप्शन आंसर है आपका? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, दोनों के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा नहीं है। Which entry आंसर can be pasted in organization average? आई गेस सीनियर मैनेजमेंट। ओके, अभिषेक तुम्हारा? IT security affairs general counsel। Cloud security representative। अच्छा, आंसर है इसका जनरल काउंसिल। और क्या होता है, जब भी एक ट्रिक बताता हूँ जितने भी इसके सवाल करने हैं, यदि कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है हर जगह से। क्योंकि चाहे आपके पास कितने इंपॉर्टेंट मैनेजरमेंट में हो, कितने ही सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव हो, कितने, किसको फ्रॉड करना है, किसी को मिसयूज करना है, किसको तुमको वेंडर लॉकिंग करके देखना है, तो हर तरीके से कर सकता है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही आपको बचा सकता है ना। मतलब मैं चाहूँ नहीं कि मेरे यहाँ से छोड़ के जाओ। तो चाहे कितना ही वो सब कुछ अच्छा स्टाफ हो, कितना स्किल्ड ट्रांजिशन लेने वाले लोग हो, कितने सब कुछ हो, पर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट यदि वीक है तो आप छोड़ के नहीं जा सकते है ना। तो सब यदि कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन हो कुछ हो तो हमेशा वो सेलेक्ट करना है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमेशा जो काउंसल्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज को फेवरेबल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कस्टमर्स के बिहाफ पे, वो सबसे ज्यादा मदद करेंगे आपको। यदि आपको वेंडर लॉकिंग अवॉइड करना है तो इसके बाद ये सीनियर मैनेजमेंट भी करेंगे, आईटी सिक्योरिटी ऑफिस भी करेंगे, बट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल हेल्प यू मोस्ट। तो जब भी ऑप्शन में ऐसा दिखे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट विद द लैंग्वेज का ऑप्शन कहीं दिख रहा है,
या उसके एसोसिएटेड कोई एंटिटी दिख रही है, तो आपको हमेशा वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सीसीएसपी एग्जाम में तो मैंने यही देखा है, जितने भी गाइड में क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही आएंगे, जहाँ पे एक ऑप्शन यदि या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने वाला होगा, तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एनी डाउट? आई एम टेकिंग दिस इज नो, सो दिस टू यू कार्तिक। ये वही सवाल है, घुमा के पूछा है पीछे वाला सवाल का, डी ऑप्शन। है ना? तो इसीलिए रखा है इसको। यदि आपको ये जैसे नॉन प्रोप्राइटरी डेटा फॉर्मेट हमने देखा, स्टैंडर्ड मीडिया भी हमने देखा, ओपन सॉफ्टवेयर यूज करना भी देखा, परंतु यदि आपके ऑप्शन में फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, तो आपको वही सेलेक्ट करना है ना? जहां पे भी आपको ये लैंग्वेज देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपके सपोर्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट आपका एसोसिएटेड है, तो आप लीगली उसको फोर्स कर सकते हैं कि भी हमको जाना है। अदरवाइज बाकी सब चाहे जो भी हो, तभी वेंडर नहीं जाने थे आपको, तो आप नहीं जा सकते। दिस टू यू अर्पित। ये भी मैंने उसी से एसोसिएटेड लिया है, सोचना उसको। ये सब सीएसपी बुक में से सवाल है। सी। हाँ, अब ये सोचोगे यार हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब में डीआरएम पढ़ा हमने, आईएम पढ़ा है, पर वो सब मैटर नहीं करता, है ना? यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज वाला ऑप्शन दे रखा है, तो क्या सेलेक्ट करना है आपको? सिर्फ वही सेलेक्ट करना है। इसीलिए तीनों सवाल रखे हैं। होप दिस इज क्लियर। ये सभी टेक्नोलॉजी तब तक काम करती है जब तक कि आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। यदि कॉन्ट्रैक्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे आप डीआरएम कर लो, आईएम कर लो, शेडिंग कर लो, कस्टमर नहीं जाने देगा तो आपको नहीं जा सकते हो, या फिर आपका जो डेटा लॉस होगा वो लॉस होगा ही सही। आप उसको जब तक कि आप लीगली इनको बाउंड नहीं करेंगे, क्योंकि सीएसपी इज नॉट लीगली बाउंड, तो कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड ही आप उसको फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो वो ऑप्शन आएगा तो वही सेलेक्ट करना है। दिस टू यू अभिषेक। अभिषेक अटेम्प्ट कर रहे हो? हेलो अभिषेक। हेलो। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। हम्म। ये कोर्स स्पेसिफिक पूछा है ना? हाँ, कोर्स पूछा कोर्स लास्ट की टाइम स्पेसिफिक स्पेल जानना है। फिजिकल फुटप्रिंट मच लार्ज प्रॉल का, तो जो वीएम का होता है ना, मैनेज मतलब हाँ वीएम। मच लार्ज। हाँ वीएम बढ़ते जाते ओवर द हाँ, टाइम। लार्ज यूटिलिटी कंजम्पशन। हाँ, तो कंजम्पशन का तुमको टेंशन है क्या? कितना ही यूटिलिटी कंजम्पशन हो, वो तो सीएसपी की जिम्मेदारी है। लार्ज नेसेसरी फिजिकल फुटप्रिंट, ये वाला लग रहा है। फिजिकल फुटप्रिंट भी नहीं होगा ना, हम फिजिकली थोड़ी इसको फुटप्रिंट, हम तो वर्चुअली फुटप्रिंट है हमारा। हमको लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या सबसे ज्यादा इम्पेक्ट आएगा? जितने वीएम बढ़ते जाएंगे उतना विंडोज के वीएम बढ़ते गए, कितना हाँ लाइसेंस हाँ कुछ हाँ, बढ़ता गया। लाइसेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव याद पूछा है, तो वो आपको उस ऑप्शन में जाना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इम्पेक्ट करता है। ये सब जो तब है तो ये लाइसेंस। सीएसपी मैनेज करता है, फिजिकल फुटप्रिंट या फिर यूटिलिटी कंजम्पशन लाइक इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, वो सब सीएसपी की प्रॉब्लम है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है, लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा यदि मैं जितने वीएम छोड़ता जाऊंगा अनयूज्ड। ठीक है, दिस टू यू अर्पित, सॉरी दिस टू यू कार्तिक, कार्तिक का आएगा। वेंडर लॉक इन। हाँ, आपने यदि इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड यूज नहीं किया, तो जरूरी नहीं कि डेटा डिस्क्लोज हो। और वेंडर लॉकआउट, यदि वेंडर खुद ही पोटेंशियल नहीं है, पर वेंडर लॉकिंग हो सकता है ना। दिस इज मॉड्यूल 3, हम थोड़ा 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ा कल तक हम मॉड्यूल ये डोमेन खत्म कर देंगे। थोड़ा मॉड्यूल 4 10 मिनट पढ़ते हैं ना। अभी तक हमने क्लाउड के थोड़े ये सब
डेटा सेंटर की डिजाइन देख लिए, थोड़े रिस्क देख लिए। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं ना। तो कुछ 5 इसके सब हैं कि फिजिकल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसे होता है, सिस्टम स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, वर्चुअलाइजेशन का कंट्रोल कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्लाउड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे होता है, ऑडिट मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं ना। दो ये सब भी हम थोड़ा और डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम मॉड्यूल 5 पढ़ेंगे, तो हियर उनका कुछ ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। सो हमने देखा कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, हर चीज के लिए जो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन है। NIST SP 800-123 याद रखना है आपको, वो डेटा सेंटर डिजाइन के लिए यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के लिए। हमने 800 143 देखा था, 143 145 देखा था, 145 का देखा था, 800 145। डोमेन 1 के फिप्स में देखा था, फिप्स। नहीं, 15 डोमेन उनकी डेफिनेशन थी, डोमेन 1 की क्लाउड की डेफिनेशन क्लाउड की डेफिनेशन थी। 145। राइट राइट। सबसे पहली चीज भूल जाते हैं आप। ठीक है, ये 1 2 3 क्वाइट 1 2 3 है तो डायरेक्टली। तो याद रखना वो डेटा सेंटर की डिजाइन के लिए होता है। डेटा सेंटर की डिजाइन मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में, इसकी बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, इसकी सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, उसका नेटवर्क कम्युनिकेशन फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, PC, लैपटॉप, फोन्स, अदर स्मार्टफोन डिवाइसेस, इन सब के प्रोटेक्शन के बारे में होता है। उसका हमको पढ़ना नहीं है, हमको ये पढ़ना है कि 800 800 1 2 3 में ये सब है। ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड में, वो उसका 14 भी है। तो 1 2 3 4 ऐसे याद रखा था मैंने, तो 1 2 3 और इसके बाद 1 4 है। तो 1 2 3 4 में आपका फिजिकल डेटा सेंटर प्रोटेक्शन है। दो, कई जरूरी नहीं कि इसका ये पूछा जाए, पर कई बार ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रह सकता है कि NIST 800 1 2 3 ऑप्शन है, तो वो बदल जाएगा, वो तो डेटा सेंटर रिलेटेड था, वो तो इससे रिलेटेड नहीं है ना, रिस्क से रिलेटेड नहीं है, कंप्लाइंस रिलेटेड नहीं है, दैट वाज डिफरेंट related to data center design. So हमने देखा कि the controls on the physical infrastructure, so policy and procedures shall be established for maintaining a safe and secure working environment in office rooms, facilities, secure area, and the physical access to the information assets and function by user and support personnel shall be restricted, and physical security measures like fence, walls, bearings, guards, gates, surveillance, ये सब होना चाहिए। This is the example of the security controls. ऐसा यहाँ से कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। वर्चुअलाइजेशन कंट्रोल्स देखते हैं। सो हमारे जो वर्चुअल कंपोनेंट्स है, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क से, तो हम मैनेजमेंट प्लान जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कंट्रोल करता है, सो वी कैन प्रोटेक्ट द उसका GUI बेस्ड एक्सेस, उसका CLI बेस्ड एक्सेस, API बेस्ड एक्सेस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करें हम उसको। कौन GUI एक्सेस कर सकता है, कौन उसका CLI एक्सेस कर सकता है, API एक्सेस कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी रिसोर्स टू प्रोटेक्ट है। हमेशा याद है कि व्हाट इज द प्राइमरी रिसोर्स टू प्रोटेक्ट, क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछता है, वो हमेशा मैनेजमेंट प्लान देना है आपको आंसर। सो दिस कंपोनेंट्स नीड्स टू बी हार्डेड टू द हाई। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे इसमें था, ये बताता हूँ मैं। ये जितने भी कंपोनेंट्स है, मान लो आपके VM से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना, पर CSP की सर्विस आप ले रहे हो गूगल की या ओरेकल की, है ना, या फिर आपका कोई भी कंपोनेंट है, हार्डवेयर का है या सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, वो किसी और वेंडर ने दिया है, वो उस CSP ने नहीं दिया, उस CSP ने जरूरी नहीं बनाया हो। जैसे ओरेकल ने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस उसका है, बाकी सब वो सर्विस जो सेल कर रहा है वो किसी और वेंडर्स के हैं। तो जो हार्डनिंग ऑफ द सिस्टम होती है ना, दो तरह की हार्डनिंग होती है, हार्डवेयर की हार्डनिंग और सॉफ्टवेयर की हार्डनिंग। हार्डवेयर की हार्डनिंग मतलब हार्डवेयर में जो कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरह का सिक्योर कीबोर्ड होना चाहिए, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बूट बूट का और बायोस का सिक्योरिटी होती है, हार्डवेयर सिक्योरिटी होती है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो भी लिया आपने, आपने मान लो सर्विस नाउ परचेज कर रखा है वहां पे, आपने आपने माइक्रोसॉफ्ट का O365 का लाइसेंस ले रखा है, वो सब तो आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर लिए डिफरेंट वेंडर से, है ना। तो वेंडर की जो कि तो हु डिसाइड द, क्वेश्चन आता है कि हु डिसाइड द हार्डनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, इज इट CSP, इज इट ऑर्गेनाइजेशन हु इज परचेसिंग दिस, इट इज द वेंडर। सो इट इज ऑलवेज वेंडर स्टैंडर्ड, क्योंकि वेंडर है, उसको पता है कि मेरे सिस्टम में क्या बग है, मेरे क्या नए वर्जन आ रहे हैं। तो वेंडर की जो गाइडलाइंस और वेंडर की जो स्टैंडर्ड्स फॉलो है, उसको आप फॉलो करके अपने इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये क्वेश्चन था मेरे इसमें कि यू आर यूजिंग ए कंपोनेंट्स एंड देयर इज ए न्यूज अलर्ट आया है कि उसमें एक सिक्योरिटी बग आया है, एंड यू हैव ए पॉलिसी कि आप हर 30 डेज में अपने सिस्टम को पेच करेंगे
ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। और सीएसपी की पॉलिसी है कि सीएसपी आपको सीएसपी आपको डाउन टाइम देगी हर वीकेंड पे, हर संडे, मतलब हर संडे पे। और वेंडर्स ने कहा है कि इमीडिएटली इसको पेच करना है। तो आप जब पेचिंग का डिसीजन लेंगे तो आप क्या कंसिडर टॉप प्रायोरिटी करेंगे? तो पहला ऑप्शन था योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, सेकंड था द सीएसपी पॉलिसी, थर्ड था वेंडर्स गाइडलाइन। तो वेंडर्स गाइडलाइन पे भी वेंडर्स मैनेज सॉफ्टवेयर है ना, तो जब भी वेंडर्स कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो आपको वेंडर गाइडलाइन टॉप प्रायोरिटी पे लेनी है, ठीक है? क्योंकि वेंडर उनको जानता है कि इसमें इसकी सिक्योरिटी थ्रेट्स का इम्पैक्ट क्या है। सो फार सो गुड। एंड व्हेन अदर कंट्रोल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट जोन, एक ट्रस्ट जोन कंसेप्ट है, सेग्रीगेट द इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल। लास्ट कंसेप्ट आज मैं ट्रस्ट जोन पढ़ाऊंगा बस। तो ट्रस्ट जोन हम देखते हैं कि ट्रस्ट जोन क्या सेग्रीगेट करता है। जब अदर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ट्रस्ट जोन कैसे रहता था? हमने डीएमजेड पढ़ा हुआ किसी ने ऑलरेडी, डीमेटेरियलाइज जोन हम बनाते हैं। तो ए ट्रस्ट जोन कैन बी डिफाइंड एज ए नेटवर्क सेगमेंट within which data flows relatively free, whereas data flow in and out of the trust zone is subject to strong restrictions। तो जो ये इंट्रानेट वाला है या फिर प्राइवेट रिसोर्सेज जहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ तो वर्चुअली या इंटरनेट का कंसेप्ट है नहीं, ये हम दो सबनेट बनाते हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट बनाते हैं ना क्लाउड में। जो प्राइवेट सबनेट होता है उसके वो एक फायरवॉल के बिहाइंड होते हैं, और जो पब्लिक सबनेट होता है, पब्लिक रिसोर्स होते हैं, वो भी फायरवॉल के बिहाइंड होते हैं। और इंटरनेट से जो भी एक्सेस होता है पब्लिक सबनेट विया फायरवॉल। अब एक फायरवॉल रूल होता है, बाहर वाली एक्सटर्नल फायरवॉल होती है, उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि हु कैन एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट एंड व्हाट पोर्ट इज अलाउड इन दिस पब्लिक रिसोर्सेज। और जो प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं वो कभी भी इंटरनेट के एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ पब्लिक रिसोर्सेज उनको प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक रिसोर्स का एग्जांपल है लोड बैलेंसर है। जो लोड बैलेंसर हमेशा होता है वो डीएमजेड में बैठता है। कभी भी किसी कंपनी में कोई एप्लीकेशन प्ले होती है ना, तो जब भी लोड बैलेंसर होता है वो पब्लिक सबनेट में बैठता है, वो इंटरनेट एक्सेसिबल होता है विद स्पेसिफिक पोर्ट, पोर्ट 80 ही एक्सेसिबल होता है। यहाँ पब्लिक सबनेट से प्राइवेट सबनेट में मान लो 80 पोर्ट है या 3000 पोर्ट है, कुछ भी एप्लीकेशन का अपना पोर्ट है, तो वो पब्लिक सबनेट वाले रिसोर्स से प्राइवेट में ओपन होगा इस फायरवॉल से, और यहाँ से तो हमेशा ब्लॉक होगा प्राइवेट सबनेट में। इसी को डीमेटेरियलाइज्ड जोन बोलते हैं, डीएम जोन। सो साइड स्पेसिफिक जोन सजेस्ट सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट और फंक्शन के हिसाब से एप्लीकेशन डिफाइंड जोन होता है, सच एज 3 टायर्स ऑफ द वेब एप्लीकेशन। इसको 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं वेब एप्लीकेशन को। डेटाबेस होता है ज्यादातर वो आपके इंटरनल फायरवॉल सिस्टम में होता है, और डेटाबेस को सिर्फ एक्सेस होता है एप्लीकेशन का, जो भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक में, वो भी प्राइवेट में हो सकती है। लोड बैलेंसर पब्लिक में हो सकता है। तो एक क्वेश्चन इसमें डीएमजेड नहीं पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि एक 3 टायर या 2 टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन है, यहाँ से मेरा क्वेश्चन आया से बता रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होगा कि यू आर सीईओ या सीटीओ या फिर डेवलपर ऑफ ए 3 टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन, और आपको लोड बैलेंसर भी है, आपके इसमें डेटाबेस भी है, एप्लीकेशन भी है। तो वेयर यू विल प्लेस द लोड बैलेंसर, वेयर यू विल प्लेस द एप्लीकेशंस, तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मल्टीपल टायर हो जाए कितने भी, आपकी जो प्राइवेट रिसोर्सेज है, डेटाबेस है, जो इंटरनेट एक्सपोज नहीं होने चाहिए, जिसको कस्टमर को, जिनको पता नहीं होना चाहिए इंटरनेट को, वो सभी प्राइवेट सबनेट में रख दो। एप्लीकेशन भी प्राइवेट सबनेट में रख सकते हो, डेटाबेस भी, दोनों चीज कंपोनेंट यहाँ रख दो, 2 टायर यहाँ रख दो, 1 टायर लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में रख दो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था मेरे इसमें भी। और ये डीएमजेड यही करता है कि डीमेटेरियलाइज्ड जोन में यू डिफाइन के जो रिसोर्सेज आपको जरूरी नहीं है कि इंटरनेट से एक्सेस हो, उनको प्राइवेट सबनेट में रखो विद बिहाइंड ए फायरवॉल। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? इसके क्वेश्चन देखेंगे हम कल इसको डोमेन 4 के, तो उसमें एक क्वेश्चन होगा ऐसा। तो अभी तक समझ में आ गया? कुछ इसमें डाउट है क्या? डीएमजेड पढ़ा भी होगा पहले, नहीं। ठीक है। आई थिंक ये लास्ट है, कल हम इसको बाकी वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स देखेंगे, और कल हम इसको, डीएमजेड वाला वो तो जनरली वो प्रॉक्सी सर्वर से रहता है। हाँ, लोड बैलेंसर प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअली क्या, लोड बैलेंसर प्रॉक्सी सर्वर का काम भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी लगाई होगी ना स्कूल में, किसने बोला होगा रोल नंबर 5, तो किसी और लड़के ने कहा होगा हाँ मैं रोल नंबर 5 हूँ। तो जब इंटरनेट से बोलता है कि मुझे मुझे सर्विस नाउ एक्सेस करनी है, इंटरनेट को यूजर कहता है, तो वो सर्वर कहता है कि हाँ मैं सर्विस नाउ हूँ, दो वो सर्विस नाउ नहीं है, एक्चुअली वो प्रॉक्सी सर्वर है। वो रीजन क्या है कि ट्रैफिक उसके पास आता है और वो ट्रैफिक यहाँ भेजता है, इसलिए उसको प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। सो व्हेन देयर इज अ कॉल फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट में सर्विस नाउ का आईपी एड्रेस प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस दिया होता है।
तो इंटरनेट से बोलता है कि इस आईपी एड्रेस का रिसोर्स कौन है, तो वो बोलता है कि मैं हूँ, जबकि एक्चुअली रिसोर्स ये रहता है। और फिर जब रिक्वेस्ट यहाँ आती है तो रिक्वेस्ट लेट्स से पोर्ट 80 पे आई, हमेशा पोर्ट 80 या 443 पे रिक्वेस्ट होती है। यदि एचटीटीपी भी होती है तो पोर्ट 80 होती है, एचटीटीपीएस होती है तो पोर्ट 443 होती है। यहाँ से वो एक्चुअल पोर्ट जो होता है सर्वर का, क्योंकि इंटरनेट में आपको किसी भी सर्वर को हैक करना है तो उसकी दो चीज चाहिए, उसका आईपी एड्रेस, उसका पोर्ट। यदि मुझे किसी भी रिसोर्स का आईपी एड्रेस से पोर्ट है ना, तो उसमें मैं कई तरह के अटैक कर सकता हूँ, सीएमपीएस अटैक मैं कर सकता हूँ, उस पर पिंग अटैक, मेरे को कई तरह के अटैक पॉसिबल है यदि मुझको उसका एक्चुअली आईपी एड्रेस और पोर्ट पता चल जाए तो ये प्रॉक्सी सर्वर वो दोनों हाइड करता है। जो एक्चुअल पोर्ट होता है वो सिर्फ यहाँ ओपन होता है, यहाँ पता होना चाहिए। बाहर को हमेशा 80 और 443 पोर्ट पता होता है, और जो एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है वो भी इसको पता है। बाहर को तो सिर्फ इसका लोड सर्वर, लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस पता है। और इस पे अटैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे कितनी अटैक हो जाए, इस पे कितनी पिंग रिक्वेस्ट आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने डेवलप किए होते हैं, अलग से लोड बैलेंसर होते हैं, अब अलग से प्रोक्सी सर्वर्स होते हैं, उन्होंने अपनी मैकेनिज्म डेवलप कर रखी है। तो यहाँ कितना भी अटैक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ नहीं होना चाहिए अटैक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने ब्रेक भी नहीं लिया है, ज्यादा हेवी हो जाएगा फिर।